کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کے 4 آسمانی کتابیں ہیں، مطلب ورڈ آف گاڈ، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو باقی 3 کتابیں جو کہ آسمانی ہیں، ورڈ آف گاڈ ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ 1 منٹ صاحب آدھا منٹ، تھینک یو، بالکل آدھا منٹ دوں گا، 2 منٹ بہت ہو جاتے، پھر بھی میں نہیں دیا آپ کو، آپ کی محبت میں تھینک یو سر، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لو یو ٹو۔ بھائی صاحب کا سوال ایک دم اچھا تھا ماشاءاللہ، 4 جملے میں آدھے منٹ سے کم، یہ صحیح ہے، آدھا منٹ لو، 1 منٹ لو، 2 منٹ بہت ہو جاتا ہے، پھر بھی میں نے دیا۔ بھائی صاحب کا سوال ایک دم صاف ہے، ایک دم ستھرا ہے اور آسان اردو میں ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی جو اللہ کے کلام تھے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال، جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا، ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ اور بھائی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی، کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات وہ وہی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، زبور وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی، انجیل وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل۔ بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا، ہم نے ذکر کیا سورہ ہجر میں، قرآن نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، کہ ہم نے قرآن نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا۔ اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی۔ مثال کے طور پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے۔ بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں، گوسپل میں I have been sent only to the lordship of Israel، میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے، جو بھٹکے ہوئے۔ یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں پہلے کہوں گا سورہ صف میں، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، فور جیسس کرائسٹ پیس بی اپن سیز there will be a messenger to come by the name of احمد، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے اس کا نام ہے احمد۔ اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 اینڈ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 to 12 I have many things to say unto you but ye cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you into all truth, he shall not speak of himself, all that he hears shall he speak۔ اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 12 13 14 کہ مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے، وہ ہی when the spirit of truth جو حق کا روائیں گا وہ آپ کو دکھائیں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گا، وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا، وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے۔ یہ جو گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے، وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے۔ آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی، قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے۔ اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا۔ آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے، تو جتنے پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے، اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، جو اللہ نے کلام نازل کی وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری رحمت سارے عالم کے لیے،
सारे इंसानियत के लिए, सारे कायनात के लिए। और क्योंकि पहले जितने भी वही आए, तोरा, जबूर, इंजील, सूफ, इब्राहिम, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और सिर्फ एक ग्रोह के लिए थे। कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजा गया था। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा, हमने कुरान भेजा ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को अंधेरे से रोशनी मिला। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, 52, Here is the message from mankind, let them know there is one God, let them know, let them enough understanding take it। आप ये समझ लो सारे इंसानियत के लिए कुरान मजीद है और वो जान ले क्या एक ही अल्लाह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, रमजान was the month in which the Quran was revealed। रमजान वो महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ सारी इंसानियत के लिए हिदायत और हक और बातिल के दरमियान फैसला करने। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह ज़ुमर में सूरह नंबर 49 39 आयत नंबर 41 कि कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को हिदायत दे, सिर्फ मुसलमान को नहीं, सिर्फ अरबों को नहीं। तो क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, उसके बाद कोई और कलाम नहीं आएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाकी जितने किताब आए उनको महफूज रखना सही नहीं समझा और लॉजिकल है। हम जब जाते हैं, हम जब पढ़ते हैं, हम जब तहकीक करते हैं साइंस में, तो साइंस के अंदर आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप लेटेस्ट एडिशन की किताब पढ़ेंगे या पुरानी किताब? पुरानी किताब में हो सकता है गलतियां है, हो सकता है गलती नहीं है, हो सकता है इनकम्प्लीट है। आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? लेटेस्ट एडिशन। तो कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला का आखिरी कलाम है इंसानियत के लिए और अल्लाह ताला ने इसके अंदर सारे इंसानियत के हल दिए। आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पहले क्यों नाजिल की, पहले क्यों तोरा की, फिर जबूर की, फिर इंजील की, फिर कुरान? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानों के खालिक है, इंसानों को अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसी मिसाल हुई, मेरा बेटा बोलता है अब्बा मुझे डॉक्टर बनने का है, आप मुझे नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों डालते, डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज में डालो। मैं बोलेगा बेटा पहला नर्सरी में जाओ, फिर प्री प्राइमरी में जाओ, फिर सेकेंडरी में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। डायरेक्ट आपको मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे, क्या समझेंगे आप? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि इंसान कब कुरान को समझ पाएंगे। जब इंसान लाखों साल पहले या हजारों साल पहले अगर नाजिल करते वो कुरान समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला जानते हैं कि 1400 साल पहले अभी वक्त आ गया कि इंसान कुरान को समझ पाएंगे। तो पहले जितने कलाम थे वो उतने लेवल के थे जितने लेवल इंसान समझ सकते थे, इसीलिए अल्लाह ने उसे महफूज रखने को जरूरत नहीं समझा। उसमें मिलावट आ गई। आप बाइबल देखेंगे, बाइबल में मिलावट है। इट कंटेन द वर्ड्स ऑफ गॉड, कुछ अल्लाह का कलाम होगा। अगर कुरान से मिलता है हमें कोई इतराज नहीं, कुछ पैगंबर का कलाम है, कुछ हिस्टोरियन का कलाम है, कुछ पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी मतलब ऐसे अल्फाज है जो आप मुझे $1,000,000 देंगे तो भी मैं स्टेज पे नहीं पढ़ पाऊंगा। बाइबल में ऐसे कहानी किस्से है कि कौन मुझे $1,000,000 मिलियन रुपीज नहीं, $1,000,000 या 1 अरब रुपया मुझे देगा आज और कहेगा कि पब्लिक के सामने पढ़ो, मैं पढ़ ही नहीं सकूंगा। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल चैप्टर नंबर 24, आप मुझे 1 अरब रुपये देंगे तो भी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे इस्लाम इजाजत ही नहीं देता है ऐसे वाहियात अल्फाज पब्लिक के सामने बोलूं। तो ये आपका जो प्रेजेंट बाइबल है मिक्सचर है, अल्लाह का कलाम भी है, कुछ पैगंबर का कलाम भी है, हिस्टोरियन की किताबें और पोर्नोग्राफी भी। तो हमें पढ़ना चाहिए आखिरी किताब जो अल्लाह ने महफूज रखी है, वो है कुरान मजीद। इसमें कोई मिलावट नहीं। तो आपको पुरानी किताब से क्या दिलचस्पी है? आप जब पढ़ने जाएंगे साइंस में, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग में, आप बोलेंगे मैं पहला एडिशन पढ़ना चाहता हूँ, तहकीक के लिए पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन अमल करने के लिए आप आखिरी एडिशन पढ़ेंगे बस। तो अमल करने के लिए कुरान मजीद काफी है। अल्लाह ताला आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता है। आखिरी एडिशन अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा है। आपको अगर तकाबिल अध्ययन का माहिर बनना है तो नो प्रॉब्लम, आम इंसानों को क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? आप समझ रहे? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा मालिक है, हाकिम, वो जानता है आपको अगर तकाबिल अध्ययन का माहिर बनने का है। मैं तालिब हूं तकाबिल अध्ययन का, मैं पढ़ चुका हूं, मैं क्यों बोलूं बाकी मुसलमान को पढ़ूं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानों के लिए आसानी चाहता है, साफ कह चुका है, ये आखिरी कलाम है, इस पे अमल करो। और एक मजहब जो अल्लाह ने हमेशा सिखाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, सिर्फ एक ही दिन अल्लाह के नजदीक सही है, वो इस्लाम। मेरा सवाल एक ये है कि हमारे मुस्लिम भाई पैगंबर इस्लाम की शान में एक नात है जो कुछ इस तरह है कि वो सब नबियों से आपको आला कहते हैं। तो सही बुखारी और उसकी 2411 आयत में लिखा है कि आपने फरमाया कि मुझे मूसा से बड़ा ना करो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया। आप कहते हैं कि आपने कोई हदीस का हवाला दिया क्या अल्लाह के रसूल, आपने बोला अल्लाह के पैगंबर, नाम ही नहीं लिया, अल्लाह के मुझसे पैगंबर है। अल्लाह के पैगंबर, इस्लाम के पैगंबर ने कहा कि मूसा से आला मत कहो, अल्लाह के मुझसे पैगंबर है। आप कौन से पैगंबर का जिक्र कर रहे हैं? कौन से पैगंबर का जिक्र कर रहे हैं? पैगंबर इस्लाम का। पैगंबर इस्लाम 1,24,000 नबी भेजे अल्लाह के रसूल ने, और पैगंबर 25 पैगंबर इस्लाम है हमारे कुरान मजीद में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नाम लो ना, आप घबरा रहे क्यों? आप जरा वो हदीस का हवाला देंगे, कौन से हदीस का हवाला दिया आपने? 24:11। 24 गया जी, बुखारी 24 गया, आगे क्या? सही बुखारी 24:11 आयत 24:11 2411। 2411 उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि मुझे मूसा से बड़ा ना करो। पूरा पढ़ो ना, ऐसा हदीस है, आधी होती नहीं, पूरी हदीस पढ़ो।
रेफरेंस मैंने इसीलिए दे दी है। मेरे पास या बुखारी शरीफ है नहीं, और मैं बुखारी शरीफ को पूरे ध्यान से जानता नहीं हूँ। अब पूरा तो बीच में से मैं जब तक आप पूरा नहीं देंगे मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। मूसा से बड़ा मत करो। Prophet हर said- हर हर हदीस में पहले आता है कि रावी कौन है। बुखारी पढ़ेंगे तो आता है अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल से सुना। पूरा बोलो ना। Do not give me superiority over Moses, for on the day of resurrection all the people will fall on conclusions and I will be one of them, but I will be the first to gain conclusions and will see Moses standing and holding the side of throne. हाँ, आप कुरान मजीद अगर पढ़ेंगे तो कुरान मजीद के कई आयतें जिसमें लिखा है कि आप पैगंबरों में आपस में सेम लेवल के हैं। कुरान मजीद में आयत है कि आप पैगंबरों में तफर्रुक ऊपर नीचे मत करो। अल्लाह चाहे तो अल्लाह कर सकता है, लेकिन हम मुसलमान को सब पैगंबरों में ईमान लाना चाहिए। तो उसी लिए से इस हदीस में भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हम पैगंबर एक है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह एक पैगंबर को दूसरे पैगंबर से ऊंचा कर सकता है। अल्लाह चाहे, हम ये मानना चाहिए कि सब अल्लाह के पैगंबर है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे एक पैगंबर को अजमत देना चाहे दे सकता है। तो उसी लिहाज से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सब पैगंबर एक है। लेकिन हमें हदीस से पता चलता है, कुरान की आयत से पता चलता है कि जितने पैगंबर है उसमें से 5 पैगंबर अजीम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 है। इनको अल्लाह ने और अजमत दी। अल्लाह हैज बेस्टोड सम मोर गिफ्ट देन द अदर, ये कुरान की आयत है। लेकिन हम मुसलमान को सबकी इज्जत करना चाहिए। हम एक पैगंबर को नीचे नहीं दिखा सकते बनिस्बत दूसरे पैगंबर को। तो उसी की तशरीह है, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं इसमें। लेकिन जब अल्लाह कहते हैं कि जितने पैगंबर है ये 5 और अजीम पैगंबर थे, और इन पैगंबरों में से अल्लाह के रसूल आखिरी पैगंबर है, उसमें मानते हैं जितने पैगंबर आए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जो अल्लाह कहते हैं और अल्लाह जिक्र करते हैं कुरान में या सही हदीस में, उसको रिपीट करना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपस में सब पैगंबर पे हमें ईमान लाना चाहिए। ये हमारा ईमान है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है। मेरा नाम शहबाज मसीह है और मैं क्रिश्चियन मजहब से मेरा ताल्लुक है, और मैंने दूसरी की किताबें पढ़ा है और ये हदीस भी मौजूद है। मुझे हदीस नंबर मेरे पास लिखी हुई है, याद नहीं है मुझे, कि आपके चाचा जान ने कलमा नहीं पढ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके चाचा जान से कहा जब वो मरने लगे थे कि आप मेरे कान में कलमा पढ़ लें तो आप जन्नत में जाएंगे, अगर आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपका सारा खानदान, नबी पाक के वालिदैन, नबी पाक जब पैदा होने वाले थे तो 6 माह पहले आपके वालिद फौत हो गए थे, और 6 साल बाद आपकी वालिदा, 40 साल बाद आपको नबूवत मिली है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या नबी पाक के चाचा जान और वालिदैन जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? नहीं ये सवाल है, चीजें मैंने पढ़ा। भाई साहब का सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल में मिली, उनके खानदान वाले चाचा जान, उनकी वालदा, उनके वाले क्या जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे? जो तहकीक करने के बाद हमें पता लगता है उनके खानदान वाले कोई भी हो, चाहे वालिद हो, वालदा हो, चाचा हो, चाची हो, बहन हो, भाई हो, अगर तौहीद पे है और शिर्क नहीं करते तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल के आने के पहले, अल्लाह के रसूल नबूवत ऐलान करने के पहले अगर कोई शख्स अल्लाह पे यकीन रखता है, एक अल्लाह की इबादत करता है और शिर्क नहीं करता है, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने नबूवत का दावा नहीं किया था, तो नबूवत जरूरी नहीं थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानना जन्नत में जाने की। उस वक्त आपको मानना चाहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। उस वक्त के पैगंबर, अगर वो दौर था ईसा अलैहिस्सलाम का, तो आपको मानना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। अगर वो दौर था मूसा अलैहिस्सलाम का, तो मानना चाहिए मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। अगर कोई दूसरा दौर था, लेकिन लाजिम है कि आपको मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करना चाहिए। तो आप किसकी भी तहकीक करो, वालिद, वालदा, भाई, बहन, जो भी है, आपने जो जिक्र किया, तो अगर उनके रिश्तेदार, चाहे वालिद हो या वालदा, चाहे भाई हो या बहन, चाहे चाचा हो चाची, कोई भी हो, अगर शिर्क करते हैं, एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो वो जन्नत में नहीं जाएंगे, जहन्नम। आपने जो कहा, एक हदीस का जिक्र किया, आपको हवाला नहीं पता था, क्या उनके चाचा, और सही फरमाते, उनके चाचा अबू तालिब, उन्होंने अल्लाह के रसूल को प्रोटेक्ट किया, उनको महफूज रखा दुश्मनों से, क्योंकि वो अपने कबीले के थे। लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि अल्लाह ही के और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर, लेकिन अपने जान से बढ़कर उनकी हिफाजत की। इसीलिए अल्लाह के रसूल चाहते थे कि उनके चचा इस्लाम कबूल करे, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। आपका कहना है क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया। अल्लाह के रसूल ने अपने रिसालत का ऐलान कर चुके थे, वो उनकी हिफाजत किए, उनकी मदद की, अपने जान से बढ़कर की, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये नहीं माना कि वो अल्लाह के रसूल थे, इसीलिए वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मुफस्सिरीन ये कहते हैं, मुहद्दिस ये कहते हैं कि उनको सबसे कम, दोज़ख में सबसे कम सजा मिलेगी, ये उनकी तशरीह। लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के पैगाम को एक्सेप्ट नहीं किए, वो नहीं मानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसीलिए वो जहन्नम में जाए। तो रिश्तेदार होने की वजह से कोई अल्लाह के रसूल के या कोई अच्छे इंसान के आपको जन्नत नहीं मिलेंगी। जन्नत में जाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मेरे हस्बैंड नॉन मुस्लिम है, उनका कलमा है ला इलाहा इल्ला फजलुहु। वो पीर परस्त है,
पीर परस्त है, पीरों से मांगते हैं, सजदा भी करते हैं कब्रों को। मैं बहुत परेशान हूँ, आप बताइए मैं क्या फैसला लूँ? क्या मैं उनसे तलाक ले लूँ या उनके साथ सरवाइव करूँ? ये मामला मुझे बाद में पता चला है। बहन ने कहा कि उनके जो शौहर है पीर परस्त है, उन्हें बाद में मालूम पड़ा, तो मैं क्या करूं? आप अगर उनकी अहलिया है, आप पे फर्ज होता है कि आप उन्हें इस्लाम की सही दावत दें, आप उनको कुरान और सही हदीस की तरफ लेके आए। ये मैंने आपका फर्ज बहुत है। समझाया है, हदीसें खोल के आपने समझाई। सवाल पूछ लिया, अभी आप जवाब सुनिए। आप बीच में अगर इंटरजेक्ट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकता। आपने सवाल पूछ लिए, अभी आपका सवाल खत्म। आपका फर्ज है कि आप उनको दावत दें, और दावत देने के बाद अगर वो नहीं माने तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते हैं कि आप अगर शिर्क कर रहे हैं तो शिर्क जो है, आपने कहा मेरे शौहर शिर्क करते, अगर आपको यकीन है कि शिर्क करते तो शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है, तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते हैं कि देखो आप अगर शिर्क को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपसे खुला लूंगी या मैं जाऊंगी काजी के पास और आपसे जो निकाह फस करूंगी। ये इस्लाम में शरीयत की इजाजत है कि आप खुला ले सकते हैं या निकाह फस कर सकते हैं। आप उनको समझाइए, मानते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शिर्क कर रहे हैं और आपको यकीनन पता है कि शिर्क कर रहे तो आप काजी के साथ जाके निकाह फस कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की स्पीचेस में ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से निकात हैं जहाँ वो बदली है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये सुना गया है कि बाइबल बदल गई है, लेकिन वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ जहाँ से वो बदली है? आई नीड टू नो। भाई साहब का सवाल था कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं बाइबल बदली है। बाइबल ने बदली, इंजील बदली है। बाइबल इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। बाइबल इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूँ, स्कॉलर ऑफ बाइबल कहते हैं। कितने आर्टिकल्स है आप अगर पढ़ेंगे, आर्टिकल 50,000 एरर्स इन द बाइबल। कितने? 50,000 गलतियां। कौन कहता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने। जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, जो खुद क्रिश्चियन है, वो कहते हैं कि बाइबल में 50,000 गलतियां हैं। आप अगर जानना चाहते क्या गलतियां, आप मेरी वीडियो का सेट देखिए। मैंने डिबेट किया हूँ डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। उसमें मैंने कई साइंटिफिक गलतियां निकाली हूँ। कई बाइबल में कई कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तकरीर की है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड, क्या बाइबल खुदा का कलाम है? कई गलतियां हैं, सैकड़ों गलतियां हैं, सैकड़ों कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे आप? भाई साहब, वुड यू लाइक टू शेयर? सुनिए सुनिए, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। Yeah. एक दो बताऊंगा, सब बताऊंगा तो 10 दिन भी लगेंगे तो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। 10 दिन भी जवाब दे सब ने कुछ दिखा सकता हूँ, कुछ दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल 24:1 आप पढ़ो, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ। पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। क्या आप कहेंगे पोर्नोग्राफी अल्लाह का कलाम है? आप 1 अरब रुपया मुझे देंगे, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। आप बाइबल पढ़ेंगे, पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, इन द बिगिनिंग वाज लाइट। बाइबल में लिखा है कि शुरुआत में रोशनी थी, यानी डे 1 में रोशनी थी। बाद में आगे पढ़ते हैं, अब वर्स नंबर जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 पे आते हैं। फिर उसमें आता है कि खुदा ने सूरज चौथे दिन पे बनाया। आप सोच सकते हैं रोशनी कहाँ से मिलती है हमको? सूरज से। तो रोशनी बनाया दिन नंबर 1 पे और सूरज बनाया दिन नंबर 4 पे। ये साइंटिफिक एरर है। कोई भी साइंटिस्ट कहेगा कि इसमें खता है। नंबर 2, बाइबल में लिखा है जेनेसिस चैप्टर बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 कि खुदा ने चांद बनाया और सूरज बनाया। चांद सूरज बड़ी रोशनी दिन में उजाला देने के लिए, और चांद छोटी रोशनी रात में उजाला देने के लिए। अल्लाह ने खुदा ने 2 रोशनी बनाई, सूरज और चांद। सूरज दिन पे राज करने के लिए और दूसरी रोशनी चांद रात पे राज करने। कुरान में भी इसका जिक्र आता है, अल्लाह ने शम्स बनाया, कमर बनाया। लेकिन कुरान में लिखा है सूरज सिराज है, बहाज है, दिया है, खुद की रोशनी है। और चांद को डिस्क्राइब किया है नूर या मुनीर, रिफ्लेक्टेड लाइट और बोरोड लाइट। लाइट को रिफ्लेक्ट किया है या बोरो किया है, खुद की रोशनी नहीं है। आज साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है, तो ये बाइबल में साइंटिफिक एरर है। अगर आप कहते हैं अल्लाह का कलाम है कि अल्लाह ताला नहीं जानता है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं, तो बाइबल जब कहती है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी है, इसमें बड़ा खता है। आप ये अल्लाह पे इल्जाम नहीं लगा सकते। कुरान में लिखा है कि सूरज की रोशनी खुद की है, चांद की रोशनी ली गई है, बोरोड, रिफ्लेक्टेड। तो साइंटिस्ट लोग को कुरान के कलाम से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाइबल में साइंटिफिक एरर है। मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। फिर बाइबल में लिखा है कि खुदा ने बनाया तीसरे दिन पे धरती, वेजिटेबल्स, पौधे, पेड़, और सूरज बनाया चौथे दिन पे। पेड़ पौधे सूरज के बिना आ ही नहीं सकते, साइंस कहती है। सूरज के रोशनी के बिना पेड़ पौधे कैसे आएंगे? तो इस पे खता है, खता पे खता। क्या मैं लेक्चर दूं इसके ऊपर? इसीलिए कहता हूँ आप मेरी डिबेट सुनिए, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। और एक तकरीर की हुई है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड। ये दोनों तकरीर सुनिए, आपको सैकड़ों गलतियां मिलेंगी। आप बाइबल पे गूगल करो नेट के ऊपर, एरर्स इन द बाइबल। क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं कि हजारों गलतियां हैं बाइबल में। इसीलिए बाइबल अल्लाह का कलाम नहीं है। ये बाइबल जो है ये इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। हम इंजील में मानते हैं, इंजील पे ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह की वही थी जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। लेकिन ये जो बाइबल आपके पास है वो इंजील नहीं है और हम इसमें नहीं मानते। सर, मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने आसमान और जमीन को बनाया। खुदा यीशु मसीह को जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, सलीब पर हुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। मेरा ईमान है कि वो हमको लेने के लिए आएंगे। मेरा सवाल है आज का सर कि बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 1 शादी की परमिशन है और होली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है, और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारा
फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूं जो असल वाली है। और बाइबल दूसरी शादी को ज़िना करार देती है। होली कुरान में 70 हुरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल ये है कि उन 70 हुरों का आसमान पर क्या पर्पस है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी। और सेकंड सवाल ये है कि क्या आप फिर भी ईमान रखते हैं? एक सवाल, आप शायद उर्दू जानते नहीं, एक सवाल क्या एक सवाल सर एक ही सवाल है, सारा एक सवाल सर, शॉर्ट हो गया लेकिन एक ही सवाल है। एक सवाल में 2-3 सवाल पूछ चुके। तो क्या सर मेरा सवाल ये है, भाई साहब आपका सवाल मुकम्मल हो गया, आप डॉक्टर साहब का जवाब समाप्त फरमाइए। जवाब सुनिए, सवाल समझिए। मैं आपका सवाल दोहराऊंगा। आपने कहा कि मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? अपने आप उनके सवाल में इतने गलतियां थे। मैं सवाल दोहराऊंगा, मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानना चाहिए, ये लफ्ज बाइबल कुरान मजीद में है ही नहीं। नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक शादी करना चाहिए, कुरान में लिखा है कि 4 शादी करना चाहिए, और फिर कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि 70 हूर। जितने चीज कहा सब गलत, सब बकवास। नंबर 1, आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। सॉरी सर अंजील ही कह रहा था मैं अपनी तरफ से। आप जरा मेरा जवाब सुनेंगे और बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। आपने कहा बाइबल कुरान में मौजूद ही नहीं लफ्ज। इंजील को मानते हैं जो अल्लाह ने ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल की गई थी। ये जो उनके पास है वर्ड बाइबल किधर से आता है? बाइबल आता है एक ग्रीक वर्ड बिब्लोस से। बिब्लोस इंजील से नहीं, बिब्लोस मतलब बुक ऑफ बुक्स। हमें बाइबल पे यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है। बाइबल पे अमल थोड़ी करना चाहिए। आज किधर लिखा लगा बाइबल पे अमल करना चाहिए? हमको ये यकीन रखना चाहिए कि इंजील अल्लाह का कलाम है। ये यकीन रखने की जरूरत नहीं कि इंजील को फॉलो करो। इंजील पे ये यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ से वही थी, अल्लाह का कलाम है जो ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल किया, हम इस पे यकीन रखते हैं। ये प्रेजेंट बाइबल जो आपकी है वो बिब्लोस है। आपको पता है कितने किस्म के बाइबल है? आपको पता है? अभी आप जवाब दो, पता है कितने किस्म के बाइबल है? जवाब दो, कितने किस्म के बाइबल है? सर ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट सर वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देयर आर 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट, 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है बाइबल की, और कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है। आपको इल्म ही नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन ऑफ बाइबल है। ट्रांसलेशन में वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, न्यू वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, 2000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी। नंबर 1, बाइबल लफ्ज कुरान में नहीं। नंबर 2, काबिने लिख लगा बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल है आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है। उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखा है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे हैं, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में एक शादी करना चाहिए? भाई साहब मैं रेफरेंस पूछ रहा हूँ, आपके पास रेफरेंस? बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो, तहकीक करो। 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ सर। हाँ रेफरेंस दो पहले। कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। सर दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था। मैं खोलता हूँ, नेट चल रहा है क्या? बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़िना कराता है। जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। इसमें किधर लिखे लगे एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप दिखा इसके अंदर। सर यहाँ पे आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट आ रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़िना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है। सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ ज़िना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे? आप जब नहीं जानते उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स। और ये मैं
ये जो बाइबल का है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 31 इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स दैट whosoever thou shalt not divorce his wife whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है यानी अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है सिर्फ अगर उसने जिना की तो ये डिवोर्स के बारे में किधर लिखेगा कि एक शादी करना चाहिए पूरी बाइबल पढ़ो किधर भी नहीं लिखेगा कि एक शादी करना चाहिए अगर आप कितनी भी मजहबी किताब पढ़ो हिंदुइज्म की क्रिश्चियनिटी की जुडाइज्म की कोई भी मजहबी किताब में नहीं लिखेगा एक शादी करना चाहिए सिर्फ लिखा है कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में आप अपनी पसंद की बीवियां करो 2 3 या 4 लेकिन अगर आप आपस में अदल नहीं कर सको तो सिर्फ एक ये सिर्फ कुरान में है कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है आप बोलते कुरान मजीद में निकला 4 बीवी करना चाहिए आप वो कुरान मजीद की आधी आयत कोट कर रहे पूरी आयत में लिखा है आप अपनी मन पसंद बीवियों से शादी कर सकते हैं चाहे 2 हो 3 हो या 4 हो लेकिन अगर आपस में अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक मतलब इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है 2 3 मैक्सिमम 4 लेकिन अगर एक से ज्यादा बीवी रखते हैं तो आपको आपस में अदल करना चाहिए इसके ऊपर तो मैं तफसील से बात किया हूँ अभी वक्त नहीं है तो ये भी आपकी गलत फहमी है नंबर 1 बाइबल और इंजील सेम नहीं है कुरान में कहीं नहीं लिखा लगा बाइबल पे ईमान लाओ इंजील पे ईमान लाओ क्या वो अल्लाह की वही है ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की पॉइंट नंबर 2 कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं एक बीवी को गलत बोल रहा और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2 3 या 4 अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत तो तीनों आपके गलत चौथा सवाल कुरान में लिखा है कि 70 हूर कहाँ लिखा है हवाला दो कुरान का सर कुरान में तो नहीं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते अरे हैं तो चलते मुस्लिम भाई को क्यों देखते इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो मुस्लिम भाई को मत देखो मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ मैंने तकरीर में कह चुका हूँ मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते 50,000 लोग के बीच में कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले चारों चीज आपने गलत की ये बात सही है उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज है कुरान में नहीं लिखा है उसका जवाब मैं दे चुका हूँ अल्लाह गैर मखलूक है यानी अजली है तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अजली है अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है ये अल्लाह की अजली सिफ्त और कायमबल जात है मुस्नद अहमद और सनन इब्ने माजा किताबल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करेगा तो यहाँ से कलाम अल्लाह की अज़लियत उसका नातक होना और तजस्सम तीनों साबित हैं यही 3 बातें हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है और इसी कलाम का तजस्सम हुआ और शख्स के तौर पर ज़ाहिर हुआ और अहले इस्लाम नहीं मानते इसलिए हमने अपने मौक़िफ़ की तक़वियत के लिए जरा आसान उर्दू में सवाल कीजिए आप फसी उर्दू में बात करेंगे तो आधी चीज मेरे सिर के ऊपर से जा रही है आप उसका सही आसान उर्दू में आप जो बात करें आसान उर्दू में कीजिए आप अगर फसी उर्दू वाला तर्जुमा पढ़ेंगे आपको भी नहीं समझेगा तो आप आसान सिंपल उर्दू में आप सवाल पूछिए आप जो पूछ रहे और तर्जुमा भी होना चाहिए साफ आसान उर्दू में कई कुरान मजीद जो तर्जुमा होते फसी उर्दू में वो लोग के लिए जो उर्दू में महारत रखते हैं अब उनको पूछ सकते हैं मैं उर्दू में महारत नहीं रखता हूं आप आसान तर्जुमे से पूछे तो उसका जवाब दे सकूंगा मैं ओके नहीं तो आप समझ के आसान उर्दू में तर्जुमा कीजिए ओके जो इस्लामी किताब से मैंने हवाला दिया है आप अंग्रेजी जानते हैं जी आप अंग्रेजी जानते हैं नहीं अंग्रेजी नहीं जानता अच्छा तो आसान उर्दू में पूछे आसान हिंदी में पूछे ओके अंग्रेजी जबान है उर्दू नहीं तो आप जब ओके बोले तो मैं समझा आप अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में पूछेंगे शॉर्ट मैंने इस्लामी कुतब से साबित किया है कि कुरान जिस्म इख्तियार करेगा जो कि अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह का कलमा है और अजली है मतलब अल्लाह के साथ उसकी सिफ्त रखता है और यही आपकी समझ में नहीं आ रही बात अल्लाह की जात के साथ उसकी सिफ्त है क्या है अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है शिफ्ट जी तारीफ सिफत बोलिए ना जी
हाँ सिफत, हाँ जी हाँ बोलिए। अल्लाह का कलाम उसकी सिफत है और इसने जिस्म इख्तियार किया, ये इस्लामी किताब से साबित है। और अल्लाह यही का किताब ने जिस्म इख्तियार किया, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह का ये हवाला मौजूद है। आप ये गलत तर्जुमा पढ़ रहे हो। मैं तर्जुमा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हवाले में लिखा हुआ है कि कुरान नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और हाँ। शिफायत करेगा, अल्लाह से शिफायत करेगा इंसान की सूरत में आके। जी हाँ, जी हाँ। और यही बात जब हम कहते हैं कि यसु मसीह जो अल्लाह का कलाम है और अजली है और उसका तजस्सम होगा, यानी उसने भी जिस्म इख्तियार किया। अजली का मानी क्या है? हमेशा के लिए, नेवर लास्टिंग। एवरलास्टिंग, हाँ अदली है। और तो इसलिए हमने अपनी बात को तकवीयत देने के लिए इस्लामी किताब से हवाला दिया। अगर यही बात सच है जो कि आपकी किताब से भी साबित है, तो आपको भी मौला मसीह के कदमों में आ जाना चाहिए ताकि हमेशा की जिंदगी मिले, क्योंकि मसीह ने कहा कोई मेरे आप बगैर आस्ते से बात आपके करेंगे, पास नहीं जा आप सकता। अपने आप ही बात कर रहे हैं, यहाँ मुझे माइक्रोफोन पे सुनाई नहीं दे रहा है। पहला चीज ये, मेरा माइक्रोफोन से आपकी आवाज धीरे से आप बात कीजिए, फास्ट मत बात कीजिए। आप देख के नीचे देख के फास्ट बात कर रहे हैं, आस्ते से बात कीजिए। ओके सर, इस्लामी किताब से साबित है कि कुरान जो अल्लाह का कलमा है वो जिस्म इख्तियार करेगा, और हम मसीही भी ये कहते हैं कि जो यस्सु मसीह है वो खुदा का कलमा है और उसने जिस्म इख्तियार किया। तो आप हमारे वाला कीदा आपकी किताब से साबित है, तो फिर आप मौला मसीह के कदमों में आ जाएं। हाँ अभी समझा आपका सवाल। ऐसा साफ पूछो ना, आप वो पढ़े तर्जुमा पढ़े लंबा लंबा। आपका ये कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, बराबर? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खुदा का कलाम है। हमारे अकायद के कौन मुताबिक कौन खुदा का कलाम है? यस्सु मसीह। यसु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम ना जी, कुरान में भी लिखा है कि कलमतुल्लाह है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुरान का भी हवाला दे रहा हूँ। ओके ओके। ओके ओके। भाई साहब का सवाल है, अभी समझा मैं, कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का कलमा है। मैंने उनसे कहा कि कुरान में भी लिखेला है ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, इज द वर्ड ऑफ गॉड। यस, कुरान में हर पैगंबर अल्लाह का है, हर पैगंबर कलमतुल्लाह है। क्या किसी पैगंबर का दावा मौजूद भाई है? साहब ये आपने सवाल पूछ लेना, अभी माइक बंद करो आपका। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, आपने सवाल शुरू पूरा में किया बताया था। मैं सवाल अभी आपका सवाल समझा, जवाब शुरू किया गया बीच में। ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेट का सेशन है। वहाँ एक आदमी आता है ना, मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, कौन मुझे कह रहा था कि हमारे डिबेटिंग सेशन में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है हम उनको बहुत शिकस्त देते हैं। आपको डिबेट करने का तो डिबेटिंग सेशन बहुत है। मुझे किसने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम डिबेटिंग सेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत शिकस्त देते हैं। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। आपको डिबेट करने का शौक है तो उनसे डिबेट करो ना। यहाँ सवाल पूछे अभी चुप रहो, पहला सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ गया, जवाब देने लगा, बीच में टपक रहे। भाई साहब ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेटिंग सेशन नहीं, ये प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे जाकिर भाई हिकमत से बात करो, इतना लंबा टाइम दिया। तो भाई साहब का सवाल था कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम है, तो मैंने उसे कहा ये कुरान में भी लिखा है, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से आए वो सारे अल्लाह के कलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मानते हैं, क्योंकि सिर्फ लक़ब दिया गया है। अगर कुरान में कहा गया है कि ये पैगंबर कलामुल्लाह है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर कलामुल्लाह नहीं है। आप समझ रहे, आपकी गलतफहमी है। मिसाल के तौर पे कुरान फरमाते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। तो उसी तरीके से कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया जाता है कलामुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम। उसका मतलब नहीं कि वो खुदा है, ये आपकी गलतफहमी है। आप इस्लाम को जानते ही नहीं और कुरान मजीद को जानते नहीं। कुरान मजीद में इस्लाम में हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की बात लोगों को पेश की है। कुछ लोग ने माने, कुछ लोग ने नहीं माने। तो ये कहना क्योंकि ये लक़ब दिया गया इसलिए वो खुदा है, बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में साफ लिखा गया है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु इब्न मरियम। वो कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम है मरियम के बेटे। वक़ाल अल मसीह, बट मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इस्राइल, ओ इस्राइलो, उअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है। इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने शरीक किया, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग होंगी और जहन्नम उसके लिए ठिकाना होगा। ये साफ तौर के लिखा है कुरान मजीद में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं
کہ ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है, वकाल मसीह, लेकिन मसीह ने कहा या बनी इसराइल, ओ इस्राएलो, उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरे रब है तुम्हारे रब है, इन्नो में शिरक बिल्लाह, अल्लाह के साथ अगर किसी ने शरीक किया, फकद हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम करेगा, वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए आग, उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना रहेगा। तो ये साफ तौर के कि आप एक आयत कुरान की पकड़ के अपनी खुद तर्जुमा करेंगे, बिल्कुल गलत है। कुरान में साफ तौर के लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, और जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो कुफ्र कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने एक बड़ा अच्छा सेशन किया जिसमें आपने बताया कि कुरान शरीफ जो है वो सिर्फ एक अल्लाह को मानता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, तो ये जो जमा का सीगा है क्या ये ताजीमन जमा है या लाइक ये रॉयल वी है? और अगर ये रॉयल वी है तो रॉयल वी का जो रॉयल वी जो है ये तो 12वीं सदी में इख्तरा हुआ है, और उसके मुताबिक जो रॉयल लोग थे वो उस रॉयल हम में उनके वज़रा और उन बादशाह और जो जिस खुदा को वो मानते थे वो भी ऐड किया जाता था। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, क्या वो एक रॉयल वी है, ताजीमन है, या कोई और वजह है? पादरी हमारे भाई ने अच्छा सवाल किया है और वो मेरी तकरीर सुन चुके हैं और मेरा जवाब भी जानते हैं। मैं जवाब दोहराऊंगा फिर उनके सवाल पे आता है। जब कुरान में जिक्र आता है अल्लाह ताला फरमाते हैं, कई बार कहते हैं कि मैं, कई बार कहते हैं हम, अरबी में आता है नहनु, मतलब हम, इंग्लिश में कहेंगे वी। तो ये वी जो है वो दो किस्म के वी है, वन इज प्लूरल इन नंबर, वन इज प्लूरल इन रिस्पेक्ट। जमा है तादाद के लिए, अगर एक से ज्यादा तादाद है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और कभी कभी एक रॉयल प्लूरल, मतलब अगर कोई राजा है तो सिंगुलर रहेगा लेकिन कहेगा हम। तो पादरी साहब जानते हैं मेरे जवाब को। तो ये वी जो इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद में, मिसाल के तौर पे अगर मैं उर्दू में कहूंगा, और हम जानते हैं कि जो लोग तकरीर करते हैं, मिसाल के तौर पे राजीव गांधी इंडिया में कहते हैं हम देखना चाहते हैं, हिंदी में कह रहा है हम देखना चाहते हैं, हम मतलब वो एक ही इंसान है लेकिन वो अपने आप को रॉयल समझता है। तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड जब कहेंगी दैट वी कमांड यू, आई कमांड भी बोल सकते हैं, मतलब सिंगुलर, वी कमांड मतलब प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट है, तहजीब के लिए, इज्जत के लिए। तो पादरी साहब मेरे जवाब को जानते हैं। तो कहा कि ये जो रिस्पेक्ट है ये 12वीं सदी में इजाद हुआ। 12वीं सदी, पादरी साहब कौन सी जबान में 12वीं सदी में इजाद हुआ? वो अंग्रेजी में होगा, अरबी में नहीं। कुरान मजीद अरबी जबान में है, और ये अरबी जबान सैकड़ों सालों से है, और सैकड़ों सालों से नानू जो अरबी जबान में है, अल्लाह जब इस्तेमाल करते हैं, हम तर्जुमा करते हैं हम और वी, ये सैकड़ों हजारों साल से आ रहा है। कोई भी अरब ये सवाल करेगा ही नहीं। कुरान मजीद अरबी में नाजिल हुआ, और अरबी जबान में जब नानू किया जाता है दो तरीका, एक होता है प्लूरल ऑफ नंबर, एक प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए नानू कहते हैं, ये है प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत के लिए नंबर है, और ये इज्जत के लिए 12वीं सदी में इजाज़ नहीं हुआ। वो रॉयल फैमिली आप जो बोलते हो सकता है अंग्रेजी ग्रीक को समझेगा, लेकिन अरबी जबान हजारों साल पुरानी है। तो उस वक्त अरबी जबान में जब कुरान नाजिल हुआ उस वक्त भी नानू दो तरीके के थे, एक होते तादाद के लिए, एक होता इज्जत के लिए। अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं नानू अपने लिए, वो इज्जत के लिए। खूब ध्यान से क्वेश्चन। मेरा डॉक्टर साहब से मुख्तसर सवाल यही है कि आज के दौर में बेहतरीन जिहाद कौन सा है? माइक बंद कर दीजिए जी, माइक बंद कर दीजिए। जैसे मैंने कहा था कि आखिरी राउंड सिर्फ मुसलमानों के होंगे, और जो सवाल पूछना चाहते थे उसने पूछ चुका था, साइमन पहले सवाल पूछ चुका है, तो उसको मौका दिया गया है, और अक्सर सवाल गैर मुस्लिम ने पूछे। तो ये आखिरी राउंड है और ये आखिरी सवाल है। भाई साहब ने पूछा कि आज की तारीख में सबसे बेहतरीन जिहाद क्या है? आज की तारीख में सबसे हम देखते हैं माशरे में, हमारे माशरे में टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया आ चुका है, कई फितने आ चुके हैं। सबसे बेहतरीन जिहाद है जिहाद अपने नफ्स के साथ, अपनी नफ्स के साथ जिहाद करना एक अजीम जिहाद है। हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस बढ़ रही है, कितने चीजें हमको सोशल मीडिया पे आ रही है, और कई बार मुसलमान भटकते हैं और कुरान और हदीस पे अमल नहीं करते। हमारा जिहाद होना चाहिए कि हम कुरान और मजीद के नजदीक आए, कुरान और मजीद के तालीमात पे अमल करें। तो मेरे नजदीक आज की तारीख में सबसे बेहतरीन जिहाद ये है कि कुरान और मजीद के तालीमात पे अमल करें। कुरान को तर्जुमे से पढ़िए, हदीस को पढ़िए और इस पे अमल करिए। इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से दुनिया के चोटी पे पहुंचेगा। आज की हालत में मुसलमान को लोग नीचे देखते हैं, फुटबॉल की तरह लात मारते हैं, क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर है। हम अगर जिद्दोजहद करेंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और हदीस के तालीमात पे अमल करेंगे, ये सबसे बड़ा जिहाद है। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि बीइंग मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि हमारे लिए एक डे ऑफ जजमेंट है। उस दिन हर किसी का नामा अमाल उसके हाथ में दिया जाएगा और ये डिक्लेयर होगा कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, हु डिजर्व जन्ना एंड हु डिजर्व जहन्नम। लेकिन कब्र में फिर जज़ा और सजा का जो मामला है, कब्र में अजाब क्यों होना है बिफोर द डे ऑफ जजमेंट? अभी रिजल्ट डिक्लेयर होना है क़यामत के दिन, तो कब्र में अजाब फिर क्यों होना है? अगर कोई गुनाहगार है तो
कब्र जन्नत की जन्नत के बगीचे में बगीचा क्यों है, ये पहले क्यों डिक्लेयर होता है? जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई साहब ने सवाल किया है कि यौमुल क़यामा में हर एक को पता लगेगा उन्होंने क्या गुनाह किए, क्या अच्छा काम किए, और जन्नत में जाएंगे जन्नत में जाएंगे। तो ये कब्र के अज़ाब क्यों? मैं इसकी मिसाल दूंगा। जब आप कभी पढ़ते स्कूल में या कॉलेज में, एक होता है फाइनल एग्जाम, और इसका जवाब है सूरह इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आएगी। फाइनल रिकम्पेंस, जो फाइनल रिकम्पेंस वो होगा यौमुल क़यामा, ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अगर कोई शख्स जहन्नम की आग से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो सफलता पाता है, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। तो आयत में साफ जिक्र है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत, हर नफ्स मौत को चखेगी, और फाइनल हिसाब किताब होगा यौमुल क़यामा। और जो इंसान जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत में जाएगा, वो सफलता पाए, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। मतलब टोटल फाइनल हिसाब किताब आखिरत में। जिस तरीके से हम जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, एक होता है फाइनल एग्जाम, एक होता है टर्मिनल एग्जाम, बराबर टर्मिनल एग्जाम होता है कि नहीं, कुछ होता है वीकली टेस्ट। तो जब भी आप कोई भी चीज अच्छा या बुरा करते हैं, आपको उसका पनिशमेंट, उसके जो सजा या जजा, आप अच्छा काम किए उसका जजा या बुरा काम किए उसकी सजा 3 जगह मिल सकती है, एक दुनिया में, दूसरी बरज़ख में, और एक आखिरत में। 3, आपने कुछ गलत किए, अल्लाह ताला दुनिया में आपको सजा दे सकता है। आपने अच्छा काम किए, दुनिया में रिवॉर्ड दे सकता है। हो सकता है कि सजा बरज़ख में दे या रिवॉर्ड बरज़ख में दे, हो सकता है कि आखिरत में दे। सबसे अच्छा आखिरत है। तो जो भी आप गलत करते हैं, आप टोटल करेंगे, उसकी सजा दुनिया, कब्र और आखिरत में मिलाएंगे, टोटल सही रहे। कोई भी अच्छा काम करेंगे, उसका रिवॉर्ड दुनिया में मिल सकता है, आखिरत में, कब्र में और आखिरत में। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो भी गैर मुस्लिम है, वो जो भी अच्छाई करते हैं, उसको दुनिया में उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। एक मुशरिक है जो शिर्क करता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छे काम करता है, दुनिया में उसकी रिवॉर्ड मिल जाता है, तो आखिरत में अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेगा, मुझे तो इनाम मिला नहीं। मिसाल के तौर पे मदर टेरेसा, उसको बड़े बड़े अवार्ड मिले, अच्छा काम की, तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा तुमने अच्छा काम किए, तुमको शोहरत मिल गई, तुमको पूरा रिवॉर्ड दुनिया में मिला। जो गलत काम किए, हो सकता है कि थोड़ी सजा यहाँ नहीं भी मिले। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े स्मगलर है, डाकू है, अपनी जिंदगी अच्छे ऐशो आराम से दुनिया में बिताते हैं, अल्लाह ताला बोला चलो तुमको सजा यहाँ नहीं दूंगा, कब्र में दूंगा और आखिरत में दूंगा, या सिर्फ आखिरत में दूंगा। वो समझता है कि अरे मैं तो बहुत तीर मारा, गलत काम किया, मुशरिक है, डाका डाला, लोग का कत्ल किया, दुनिया में कुछ नहीं उसको पनिशमेंट मिली। पनिशमेंट मिल सकती है कब्र में और आखिरत। तो ये कहना कि आखिरत में पनिशमेंट मिलेंगी तो कब्र में क्यों मिल रही है, आप टोटल करेंगे तो सही रहेंगे। हो सकता है कि पार्ट आपको दुनिया में मिली, पार्ट सजा आपको कब्र में मिली, बाकी की मिलेंगी आखिरत में। हो सकता है कि दुनिया में आपको सजा मिली नहीं जो गलत काम किया आपने, हो सकता है कब्र में भी नहीं मिली, तो पूरी मिलेंगी आखिरत में। तो टोटल सही है ये, हाँ, लेकिन डबल सजा नहीं मिलेगी। डबल मतलब आपको मिलना चाहिए 100 पॉइंट की सजा, हो सकता है 2 पॉइंट दुनिया में मिलेगा, 8 पॉइंट कब्र में, 90 पॉइंट आखिरत। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा 100 पॉइंट दुनिया में भी, 100 पॉइंट कब्र में भी, 100 पॉइंट आखिरत में, ये गलत है। तो अगर 100 पॉइंट की सजा मिलना चाहिए, आपको कुछ पॉइंट दुनिया में मिलेंगे, कुछ पॉइंट कब्र में, बाकी मिलेंगे आखिरत। जो लोग, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये दुनिया जो है एक मुस्लिम के लिए कैद है और एक काफिर के लिए जन्नत है। तो एक गरीब यहूदी फटेले चुटेले कपड़े पहन के हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमुल्लाह उनके पास आते हो, बोलते ये हदीस की क्या मानी है, मैं तो गरीब हूँ और आपके रसूल कहते हैं कि काफिर के लिए, और मैं काफिर हूँ, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मैं गरीब हूँ, मेरे कपड़े फटे, कहाँ जन्नत है? आपके लिए, आप मुस्लिम है, आपके लिए कैद है, आप तो ऐशो आराम करे, कहाँ कैद है? तो वो फरमाते हैं, जवाब देते हैं हाफिज हजर अस्कलानी के मुसलमान जानता है कि जो उसे आखिरत में मिलेगा वो जन्नत, वो इतना अजीम है कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हो, वो आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है, ये कैद है। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, सबसे ताकतवर हो, सबसे बड़े राजा हो, लेकिन जो आपको जन्नत में इनाम मिलेगा वो इस दुनिया के मुकाबले में कैद है। और अगर वो काफिर ये जाने कि आखिरत में उसको जो सजा मिलेगी, यहाँ चाहे वो बदतरीन से बदतरीन इंसान हो, सबसे गरीब हो, सबसे भूखा, फिर भी आखिरत के अंदर जो सबसे कम आग आपके तलवे के नीचे रहेंगी तो आपका भेजा उबलेगा, सबसे छोटी से छोटी। तो अगर आपको पता चलेगा कि क्या आपको पनिशमेंट, सजा मिलेंगी आखिरत में, इस दुनिया में आप सबसे बदतरीन इंसान मिलेंगे, फिर भी आपके लिए जन्नत है, तो ये तशरीह उसकी। तो टोटल फाइनल रिकम्पेंस आखिरत में है, टोटल पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड दुनिया, कब्र और आखिरत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल हिंदुइज्म, मुस्लिम और साइंटिफिक नॉलेज के हवाले से एक सवाल अपना है। तारुफ पहले करवाइए, आपका मेरा नाम? नाम आयशा यूनस है और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। मैं मुस्लिम हूँ। हिंदुइज्म और इस्लाम के हवाले से साइंटिफिक क्वेश्चन है एक, अल्लाह ताला को लेके। साइंस कहती है कि हर चीज का एक पैरेलल और एंटी पैरेलल मौजूद है, तो ये एक ही गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है अर्थ प्लैनेट। तो लेकिन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है, तो क्या जब ये प्लैनेट जो अर्थ है तबाह हो जाएगा, इस पे क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो ये जो दुनिया का खेल है जिसे अल्लाह ताला कुरान पाक में खेल कहते हैं, ये खत्म हो जाएगा? क्या अल्लाह ने सिर्फ एक ही दफा ये दुनिया बनानी थी और ऐसी मखलूक बनानी थी? तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट गैलेक्सीज के अंदर डिफरेंट इसी ही तरह के अर्थ प्लैनेट्स मौजूद हैं जिसमें हमारी ही तरह की मखलूक पाई जाती है, और जिसके हवाले से अल्लाह ताला ने अपने आप को रब्बे आलमीन और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा है। तो
मेरा अकीदा अचानक से उस तरफ जाने लगता है कि जैसे हिंदुइज्म में जो जन्म की बात की जाती है वो सच है, क्योंकि शायद इसी अर्थ के पैरेलल या एंटी पैरेलल दूसरी गैलेक्सीज के अंदर भी ये सिलसिला चलता रहेगा। एक दुनिया खत्म होगी तो दूसरी दुनिया भी कहीं ना कहीं इस वक्त भी चल रही है और दोबारा भी चलेगी। बहन का लंबा सवाल था। बहन ने पूछा कि हम जानते हैं कि ये अर्थ है, प्लैनेट, एक का हर चीज का एंटी पैरेलल है। ये बिल्कुल गलत कह रही है। एंटी पैरेलल नहीं, इट्स मेड इन पैर। आप गलत तर्जुमा कर। कुरान में लिखा है कि हर चीज हमने जोड़ी में बनाया। एंटी पैरेलल हो सकती नहीं हो सकती है, गलत आपका तर्जुमा। कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि हमने जोड़े में बनाया, जानवरों को जोड़े में बनाया है, पौधे को जोड़े में बनाया है। जो चीज आपको इल्म है और जिसका इल्म नहीं है उसको भी जोड़े में बनाया। ये सूरह यासीन की आयत है, सूरह नंबर 36 वर्स नंबर 30। बट ये कहना एंटी पैरेलल, पहले खुद आप अपना तर्जुमा कर रहे हैं, गलत है। जोड़े में बनाया 14। तो इसमें कोई शक नहीं कि आज साइंस तस्लीम करती है कि सब चीज जोड़े में। हम जो चीज हमें पहले पता नहीं थी कि पेड़ पौधे में भी मेल फीमेल है, आज पता चल रहा है। तो इसमें साइंस पूरे तरीके से कुरान मजीद में आपका जो सवाल था कि जैसे तरह इंसान इस धरती पे है, इस जमीन पे है, हो सकता है इसी धरती दूसरी जगह हो सकता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने आसमान बनाए, धरती बनाए, इसके बीच में भी डाला। इसमें देयर इज लाइफ बिसाइड दिस अर्थ। इस दुनिया के अलावा भी जान है। कैसी हम जानते हैं? आप कहते हैं ये दुनिया फना हो जाएंगी फिर दूसरी दुनिया आएंगी, ये आपका वहम है। किधर भी कुरान और हदीस में नहीं लिखा, ये आपका वहम है जो गलत है। हम इस दुनिया में आए, एक बार आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन है, रहमतुल आलमीन है, बिल्कुल सही। इस दुनिया के आलम है जिनके रहमतुल आलमीन है, सबके लिए। हम जानते नहीं कितने आलम। ये कहना ये दुनिया फना होंगी फिर दूसरे आ जाएंगी और हिंदुइज्म के बारे में, बर्थ के बारे में आप दो चीज को जोड़ दिए और बिल्कुल गलत कर रहे। तो ये कहना कि हिंदुइज्म के अंदर जो बर्थ में मानते, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। आप मेरी अगर कसर सुनेंगे, सिमिलर इस्लाम एंड हिंदुइज्म, ये जो लोग कहते हैं संस्कारा कि हम रिसाइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ये उनकी गलत फहमी है। जो हिंदुइज्म में आता है वो पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मीन्स पुनर मीन्स नेक्स्ट, जन्म मीन्स लाइफ। इसको कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं। पुनर मीन्स नेक्स्ट, जन्म मीन्स लाइफ, नेक्स्ट लाइफ। हम भी मानते नेक्स्ट लाइफ में। ये हिंदू पंडित ये नहीं समझ सकते थे कि क्यों कुछ बच्चे जो पैदा होते वो पैदा होते हैंडीकैप, हार्ट डिजीज के साथ, कंजेनिटल डिफेक्ट के साथ, कुछ लोग गरीब पैदा होते, कुछ अमीर पैदा होते। तो भगवान नाइंसाफी नहीं कर सकता। वो बच्चा पैदा हुआ है, उसको दिल की बीमारी है, क्या दोष है उसका? तो वो अपनी खुद की फिलॉसफी निकाले जिसे कहते संस्कारा, संस्कृत में कहते संस्कारा, साइकिल ऑफ बर्थ डेथ, ये उनका है। वेद में लिखा है पुनर्जन्म, इसे कोई इतराज नहीं। नेक्स्ट लाइफ हम भी मानते आखिरत में, लेकिन ये कहना क्योंकि उनके पंडित ये नहीं समझ सकते थे बच्चा पैदा होता है तो वो हार्ट डिजीज में क्यों पैदा होता है, कोई अमीर फैमिली कोई। तो इस्लाम में इसका जवाब है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 वर्स नंबर आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि ये जान ले तुम में से अच्छा कौन है, अच्छे अमाल कौन करता है। तो जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। जब अल्लाह ताला अगर एक बच्चे को गरीब पैदा करता है या दिल की बीमारी से, वो बच्चा मासूम है। ये कहना हिंदू के जो पंडित कहते ने उसने पुराने जन्म में पाप किया इसलिए अभी दिल की बीमारी। अल्लाह ताला हर इंसान को अलग अलग तरीके से परखता है। किसको दौलत देखे, किसको गुर्बत देखे, किसको सेहत देखे, किसको दिल की बीमारी देखे। हर आदमी हर इंसान को अलग तरीके से परखता है। लेकिन हदीस में कहीं ना आता है कि वो अगर उसको दिल की बीमारी है तो जहन्नम में जाएगा, नहीं, उसके लिए टेस्ट हो सकता है कि उसके माँ बाप के लिए टेस्ट है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि माँ बाप अच्छे मुसलमान हैं, अगर मैं उनको ऐसा बच्चा पैदा करता हूँ उनके घर में तो दिल की बीमारी है, फिर भी वो अल्लाह पे यकीन करते हैं। अगर टेस्ट डिफिकल्ट है और इंसान टेस्ट पास करता है तो उससे औदा भी, पोजीशन भी आखिरत में और अच्छी मिलती। तो अल्लाह ताला अलग इंसान को अलग तरीके से टेस्ट करते हैं, इसको दौलत के साथ, इसको गुर्बत के साथ, इसको हेल्थ देखिए। तो ये कहना कि बिकॉज वो पुराने जन्म में पाप किया इसीलिए वो लंगड़ा पैदा हुआ या लूला पैदा हुआ, ये उनकी गलत सोच है। इस्लाम के पास जवाब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे हैं और अलग इंसान को अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। और कोई इंसान गरीब होता है उसका मतलब नहीं कि जन्म में जाएंगे। हालांकि तौर पे अल्लाह के रसूल फरमाते गरीब इंसान के जन्नत के जाने के चांसेस और है क्योंकि उसके इम्तिहान और आसान है। अमीर इंसान को हिसाब किताब देने पड़ेगा, ज़कात देने पड़ेगा, तो ज़कात हर एक के लिए फर्ज है अमीर इंसान के लिए। तो अमीर अगर ज़कात देगा तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा। गरीब इंसान को ऑलरेडी 100 आउट ऑफ 100 मिल गया ज़कात में, उसको ज़कात देने की जरूरत नहीं। तो अलग इंसान को अलग तरीके से अल्लाह टेस्ट करता है और इसको डिटेल में मैंने जिक्र किया, मेरी तकरीर में आप चेक कर सकते हैं। ये कहना कि दुनिया अलग आएंगी, नई नई दुनिया रहेंगी, ये आपका वहम है और बिल्कुल गलत है। मेरा सवाल ये है कि आप जिस तर्ज पे ये सवाल पूछते हैं मसीहियों से कि यीशु मसीह ने अंजील में बाशगाफ अल्फाज में ये दावा किया हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, तो मैं आपसे इसी तर्ज पे सवाल पूछता हूँ कि आप हमें रेड लेटर्स में ये दिखा सकते हैं कि जहाँ पर मसीह ने अंजील में ये कहा हो कि मैं खुदा नहीं हूँ, मेरी इबादत ना करो। क्योंकि जब हम अंजील को देखते हैं तो यहूदियों ने जो उन पर इल्जाम लगाया था वो कुफरी इल्जाम था कि ये अपने आप को खुदा के बराबर बल्कि खुदा का बेटा कहता है। जी
भाई साहब ने ये कहा कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये साफ अल्फाज में आप दिखाओ इंजिल में कभी कहा ही नहीं मैं, ये आपका मिलावट है। मैंने कहा बाइबल, और बाइबल का तर्जुमा इंजिल नहीं है, ये खता है, इतना समझ लो। मैंने कभी भी नहीं कहा कि इंजिल में दिखाओ, मैंने कहा आप कहीं भी बाइबल में मुझे दिखाओ बिना कोई शक बिना कोई शिबा, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अभी आप मुझे पूछ रहे हैं, आप बताओ किधर लिखा है कि खुदा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुदा नहीं हूँ? आपकी लॉजिक की गलत है। जो इंसान दावा करता है उसे दिखाना चाहिए, दावा नहीं करता दिखाना चाहिए ही नहीं। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं खुदा नहीं, उसका मतलब खुदा हो जाता हो। ये बेसिक लॉजिक है, आप बेसिक लॉजिक के नुक्ते को नहीं जानते। अगर कोई इंसान दावा करता है खुदा बनने का, उसे खुदा की दावा साफ अल्फाज में कहना चाहिए। जो खुदा का दावा नहीं करता उसे कहने की जरूरत ही नहीं कि हर इंसान आके कहेगा मैं खुदा नहीं हूँ। यहाँ कितने 50,000 लोग हैं, सब लोग बोलेंगे मैं खुदा नहीं हूँ। अंडरस्टूड है भाई, ये सिंपल लॉजिक का पॉइंट आप नहीं जानते। फिर भी मैं दिखाऊंगा, फिर भी आपको दिखाऊंगा। जी ये आपका जो आंसर है ये हमें रेड लेटर्स में चाहिए। और आप खामोशी इख्तियार करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैंने सवाल सुन चुका हूँ, दोहराने की जरूरत नहीं। आप बीच में अगर दखल अंदाजी करेंगे आप उसूल के खिलाफ जा रहे हैं। जी ठीक है, बोलना भी नहीं चाहिए, समझ गया मैं। आपको बीच में दखल अंदाजी करना ही नहीं चाहिए जब तक मैंने पूछा। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा रेड लेटर में कोट करूँ Gospel of John chapter number 24 और Gospel of John chapter number 14 verse number 28। बाइबल है आपके पास? खोलो रेड लेटर बाइबल है। रेड लेटर है क्या नॉर्मल बाइबल है? जी रेड लेटर बाइबल है क्या नॉर्मल बाइबल है? जी मेरे पास रेड लेटर बाइबल है। अच्छा खोलो Gospel of John chapter number 14 verse number 24, पहला 24 बाद में। जी बुक ऑफ Gospel of John chapter number 24 chapter number 14 verse number 28। वो लाल में ही क्या ना बोलिए, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इतना टाइम ले रहे हैं, बाइबल पहले पढ़ी नहीं कभी। जी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर बताइएगा। सॉरी 28 लाल में है क्या नहीं? जी मिल गई है। लाल में है ना? लाल में है क्या नहीं? जी ये मेरे पास उर्दू तर्जुमा है प्रोटेस्टेंट। अरे उर्दू तर्जुमा भी रेड लेटर आता है, आपने बोला रेड लेटर बाइबल है। और कोई भी बाइबल हो दो, लाल में है क्या नहीं? आपके पास रेड लेटर बाइबल नहीं है, पता है? अब झूठ बोले है क्या नहीं है? नहीं है तो बोलो नहीं है ना, बाद में चेक कर लेना। रेड लेटर्स में हमें यानी कि उनका दावा बस बता दें जो वाशगाफ अल्फाज में लिखा हो। अरे ये आपके पास रेड लेटर बाइबल अगर आप खोलेंगे तो रेड में रहेगा। रेड में है क्या नहीं? आपके पास रेड लेटर बाइबल इस्तेमाल किया कभी पहले अपनी जिंदगी में? नहीं किया। अच्छा मैं लोग को समझाता हूँ। रेड लेटर बाइबल वो बाइबल होती है जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स तहकीक करते हैं। ये पूरी बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से है ही नहीं, कुछ अल्फाज बहुत कम, पूरे बाइबल में 1% भी नहीं है, 1% भी बाइबल में रेड लेटर नहीं। आप समझ रहे? तो स्कॉलर्स ने रिसर्च किया है, अक्सर ये गॉस्पेल में मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, ये पहले 4 किताबें जो न्यू टेस्टामेंट के हैं उसमें कई जो है वर्सेस रेड में है, सबने कई, नहीं तो अक्सर बाइबल में ब्लैक है। ये भाई साहब लगता है रेड लेटर पढ़े ही नहीं कर, बोलते उर्दू तर्जुमा। मैं आपको समझाता हूं, उर्दू तर्जुमा में भी रेड लेटर आता है। रेड लेटर बाइबल मतलब क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने रिसर्च किए और उसको लाल इंक में लिखा है। लाल इंक मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लाल इंक नहीं मतलब दूसरे किसने कहा। ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 रेड लेटर है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं माय फादर इज ग्रेटर देन आई, यानी मेरे खुदा मेरे से ज्यादा महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, ये भी रेड लेटर में माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे खुदा सब लोगों से महान है। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, सब रेड लेटर में, सब रेड लेटर में। आपको टाइम लगेगा, घर पे जाके देखो, सब लगेगा, घर पे जाके देखो, इतना फास्ट आप देख नहीं पाएंगे। Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the figure of God cast out devil, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ। और लिखा है Gospel of John chapter number 5 verse number 30, Gospel of John chapter number 5 verse number 30, I can of my own self do nothing, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। ये खुदा बोल रहा है। जी सर बिल्कुल। भाई साहब अभी मेरा जवाब सुनिए, बीच में दखल अंदाजी मत कीजिए। I can of my own self do nothing, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जैसा मैं as I hear I judge, जैसा मैं सुनता हूँ उसी तरीके से फैसला करता हूँ। And I can of my own self do nothing, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my father, क्योंकि मैं मेरी ख्वाहिशें से कुछ नहीं करता हूँ, जो भी ख्वाहिश खुदा की है उसके ऊपर अमल करता हूँ। कोई भी कहता है कि मेरी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिशें के हिसाब से मैं जिंदगी बसर करता हूँ, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कह रहे कि मैं मुस्लिम हूँ, और आप पर मेरा लेक्चर सुनेंगे वहाँ कई रेड लेटर ही, अक्सर रेड लेटर ही है कई जगह पे। तो ईसा अलैहिस्सलाम साफ अल्फाज में कह रहे मेरे खुदा मेरे से महान है, मेरे खुदा सबसे महान है, मैं शैतानों को निकालता हूँ अल्लाह की मदद से, खुदा की मदद से, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और कई ऐसे, आप मेरी कसर देखिए, सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम क्रिश्चियनिटी, आपको कई रेड लेटर कोटेशन मिलेंगे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं खुदा नहीं। My name is Kashif Masih and belong to a Christian family. I had a question about science and Quran. I am a student of competitive religion since my childhood. So I wanted to get my answer from Dr. Zakir Naik, who is expert in competitive religions and as well as science and Quran. जो पहला हवाला मैं देना चाहता हूँ वो सूरह कहफ में आयत नंबर 86 है। 85 से ये वाक़या स्टार्ट होता है कि जुल्करनैन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जुल्करनैन उस जगह पे पहुंचा जहाँ सूरज जो है वो कीचड़ की झील में गरूब हो रहा था। इसके बाद इसी तरह एक वाक़या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मंसूब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू जर के साथ जा रहे थे और वो फरमाते हैं कि अबू जर क्या तू जानता है कि ये सूरज कहाँ जा रहा है? तो
ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گرم پانی کے چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمپیٹیٹو ریلیجن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ان جو جیو سینٹرک جو ماڈل آف یونیورس ہے اس کے بارے میں ہم کس طرح سے ماڈرن سائنس سے جو ہے نا وہ پیرالل جا سکتے ہیں. ویسے آپ نے حوالہ دیا سورہ کہف کا، سورہ نمبر 18 جی آیت نمبر 55 and 86 and 85 and 86. 85 and 86. Yes sir. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں سورہ نمبر 18 آیت نمبر 85-86 میں on such way he followed until when he reached the setting of the sun he found it set in a spring of murky water. Near it he found a people. We said, O Zulkarnain, either to punish them or to treat them with kindness. He said, whoever doth wrong him shall be punished. Then shall he send to the Lord and he will punish him with a punishment unheard of. اس آیت میں سورہ کہف کی آیت میں آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ذکر ہو رہا ہے ذوالقرنین کا، اور ابھی تک کے تحقیق ہو رہی ہے ذوالقرنین کون ہے. کئی مفسر نے اس کے بارے میں کہا یہ الیگزینڈر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایک تحقیق ہے، صحیح یا غلط وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ذوالقرنین نے جب دیکھا کہ وہ سورج ایک مرکی واٹر میں مطلب ایک مڈی واٹر کے اندر سیٹ ہو رہا ہے مطلب ڈھل رہا ہے، اور پھر ان سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ لوگوں کو پنش کریں گے، پنشمنٹ دیں گے، سزا دیں گے یا ان کو ریوارڈ دیں گے. تو انہوں نے کہا جو صحیح راستے پہ ان کو میں ریوارڈ کروں گا، جو صحیح راستے پہ اس کو پنش کروں گا. تو یہ ذوالقرنین کہہ رہے کہ میں نے دیکھا سورج کو ایک مرکی واٹر میں. ہم جب جاتے ہیں، ہم جب سمندر کے کنارے سن سیٹ یا سن رائز دیکھتے ہیں تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ سن رائز ہو رہا ہے پہاڑی کے پیچھے سے. تو میں کہوں گا کہ میں نے دیکھا جب میں مری میں گیا تھا، گیا نہیں کہہ رہا ہوں، مری اب تک گیا نہیں، جانے کہہ رہا تھا لیکن ابھی وقت کی قلت ہے. میں مری گیا اور وہاں پہاڑوں کے پیچھے سے سورج اوپر آ رہا تھا اور وہاں میں گیا، وہ دریا میں سورج ڈوب گیا. ارے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کائی کا ڈاکٹر ہے، کیا سورج کبھی پہاڑ کے پیچھے سے آتا ہے؟ کیا سورج پانی میں ڈوبتا ہے؟ جو دکھ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، وہاں تھوڑی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے. سر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں. سنیے میری بات، میں ابھی سوال کیا، مجھے جواب دیں گے نا. ادھر کہا گیا ذوالقرنین، سر آپ برابر سے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ ذوالقرنین until he reached، ادھر لکھا ہوا ہے کہ until when he reached the setting of the sun he found it. he مطلب ذوالقرنین، اب پڑھ رہے نہیں، he found it set. ذوالقرنین نے دیکھا کہ پانی کے نیچے وہ سورج سیٹ ہو رہا ہے. کون؟ سر بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ذوالقرنین بیان کر رہے ہیں. برابر اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ بیان کریں گے ذوالقرنین جو سمجھا وہ بیان کریں گے نا. سر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے بیان کر رہے ہیں، ذوالقرنین کی ہدایت کے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بتائے کہ جو ہم سمجھتے ہیں. آپ ذرا اس پہ دخل اندازی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ابلیس نے غلط کہا، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی غلط کر رہا ہے. سر اس کا مطلب بھائی صاحب آپ کو پہلے یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ آرگیو نہیں کر سکتے، ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، ڈاکٹر صاحب سوال کا جواب دے رہے ہیں، آپ انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے یہ. آپ غلطی پہ غلطی کر رہے، میں غلطی پہ غلطی کرتے جائیں گے، آپ 10 چیز بولتے جائیں گے، پورے فجر ہو جائیں گے، پھر بھی سوال ختم نہیں ہوگا. یہ آپ لوگ کی عادت ہے، لوگ کو مجمع دیکھنا، مائک پکڑو اور لوگ کو بیوقوف بناؤ. یو آر ٹرینڈ، آپ لوگ ٹرینڈ. آپ عام کرسچن نہیں ہے، آپ کرسچن مشنری ہے. اپنے آپ کو بولتے تقابل اذان کرنے کا تو ڈیبیٹ کرو نا. یا ڈیبیٹنگ ہے مسلمان. مجھے بہت لوگوں نے لکھا جو بھی سائڈ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے ڈیبیٹ کرے. ایک اسلام آباد میں ہے مسلم ڈیبیٹنگ سیشن، وہ پہلا آدمی تھا نا بول رہا تھا ڈیبیٹ کرو. یہاں کیا کرتے، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے. اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے، ہی فاؤنڈ، ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ سورج پانی میں ڈھل رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے صحیح کیا غلط ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے قرآن مجید میں کہ ابلیس نے غلطی کیا، وہ غلطی اللہ تعالیٰ ضرورت ڈالیں گے. آپ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھی ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں. جو بھی کچھ اللہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی چیز بیان کر رہے گا، وہ آدمی غلط کر رہا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناهما ڈو ناٹ دین بلیو سی. کیا وہ کافر نہیں دیکھتے آسمان اور دھرتی ایک تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے. یہاں صاف الفاظ میں اللہ کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا. تو جو ذوالقرنین سمجھتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا اور ذوالقرنین نے صحیح دیکھا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا. میں بھی اگر دیکھوں گا کہ پہاڑ کے پیچھے سے سورج آ رہا ہے، میں بیان کروں گا، اس کا مطلب نہیں میں یہ مانتا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے، اسی وقت دوسرے کا سے بھی آ سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہتے بالکل غلط ہے، آپ لوگوں کو بھڑکانا چاہتے بالکل غلط ہے. آپ قرآن مجید برابر سے سمجھ ہی نہیں پائے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کر لے ذوالقرنین نے کیا دیکھا، اور میرے حساب سے کوئی غلط نہیں ہے. میں بھی دیکھتا ہوں کہ سورج جا رہا ہے پانی میں، یہ نہیں کہتا کہ پانی کے نیچے جا رہا ہے، بٹ بیان تو ویسے ہی کروں گا نا. میں انگریزی زبان میں کہتا ہوں سن رائز. میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں سن کبھی رائز ہوتا ہی نہیں، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سن رائز. میں کہتا ہوں کہ سن رائز، سورج جاگ رہا ہے. میں جانتا ہوں سورج نہیں جاگ رہا ہے، یہ محاورہ ہے. سن از سیٹنگ، سن تو ہی نیچے جاتا ہے، وہ سن تو ادھر ہی ہے. کائنات میں سن اپنے ارد گرد لے رہا ہے، پورے سولر سسٹم میں نہ سیٹ ہو رہا ہے نہ رائز ہو رہا ہے.
मैं भी इंग्लिश में कहता हूँ, ये मुहावरा है। उसी तरीके से मैं कहूंगा आई हैव मेमोराइज्ड बाय हार्ट, मैंने दिल से याद किया। अरे याददाश्त दिल में नहीं, याददाश्त दिमाग में, बराबर ना? फिर भी हम कहते हैं कि आई हैव लर्नड इट बाय हार्ट, कहते क्या नहीं? मेमोरी दिल में नहीं, दिमाग में रहती। मैं कहूंगा मेरी बीवी से आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, लव सेंटर दिल में नहीं, लव सेंटर दिमाग में। ये इस तरीके से जबान है, ये मुहावरा है, आई हैव मेमोराइज्ड बाय हार्ट। कोई दिल से याद कर नहीं सकता, याद करता है दिमाग से। तो जिस तरीके से जबान है उस तरीके से मुहावरा बनता है। तो यहाँ अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि जुल्करनैन ने देखा कि सूरज ढल रहा था मरकी वाटर। मेरा डॉक्टर साहब सवाल ये है कि नबी इस्लाम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया था, और उससे पहले वो किसकी इबादत करते थे और किस तरह करते थे? भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम रियाज पाल है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। नाम क्या? लाहौर से। नाम क्या है पूछ रहा हूँ? मेरा नाम रियाज पाल है। रियाज पॉल जी। आप ईसाई है? जी मसीही हूँ मैं। मसीह। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है हमारे मसीह भाई ने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर वो बने, नबूवत हासिल हुई 40 साल की उम्र। तो उसके पहले वो किसकी इबादत करते थे? माशाअल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे एक अल्लाह की, और अल्लाह के अलावा किसी में नहीं, किसी और की इबादत नहीं करते थे। वो मानते थे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का कोई अक्स नहीं, उसका कोई बुत नहीं है, और वो उसी की इबादत करते थे। 40 साल की उम्र, जब 40 साल पहुंचे उन्हें वही आई। जब वो गाड़े हिरा में गए, इकरा पढ़ो, जिब्रील इस्लाम कहते हैं इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो, तो फिर इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो पूरी तफसीर से है। तो 40 साल की उम्र में वो नबी बने। उसके पहले उनको नबूवत नहीं हासिल हुई थी, लेकिन वो मुसलमान थे। मुस्लिम मतलब अपनी सारी जो विल है, इच्छा है, वो अल्लाह के मुताबिक जिंदगी बसर करना। तो नबूवत हासिल करने के पहले वो इबादत अल्लाह की ही करते थे, लेकिन वो पैगंबर नहीं थे, इसीलिए वो पैगाम बाकी लोग से नहीं कहते थे। जब उनको अल्लाह का हुक्म आ गया, जब वो नबी बने, उसके बाद वो लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। उसके पहले भी वो मुस्लिम थे। जितने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो मुसलमान ही थे। मुस्लिम मतलब एक अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह सुब्हाना व तआला के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। आसमानी किताबें 4 हैं, यानी 4 आसमानी किताबें नाजिल हुई, और इसी तरह हर नबी और हर रसूल जब इस दुनिया में आए तो अल्लाह ताला ने उनको कोई ना कोई किताब दी। किताबें 2 शक्ल में है, एक बड़ी किताब और दूसरी छोटी। जो बड़ी किताब होती है उसको किताब कहते हैं, और जो छोटी किताब होती है उसको सहीफ़े कहते हैं, और इसका ज़िक्र कुरान में मौजूद है। व अंज़लना इलैकल किताबा, अल्लाह ताला ने नाजिल किया उसकी तरफ किताब। इसी तरह तौरात, ज़बूर, इंजील, ये भी कुरान में ज़िक्र है। तो कुरान से 4 किताबें साबित होती है, और इसी तरह सहीफ़े भी जो है ना वो साबित होती है। सहीफ़ों के बारे में अल्लाह ताला सूरतुल आला में फरमाते हैं सुहफ़ इब्राहीम व मूसा, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सहीफ़े और मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम को किताब भी दी गई और उनको सहीफ़े भी दिए गए। अब बात यह है कि अगर 4 आसमानी किताबें हैं तो 4 क्यों नाजिल हुई? एक किताब भी जो है ना वो नाजिल हो जाती और उससे जो है ना लोगों का बहुत ज़्यादा इस्लाह हो जाता। तो उसका जवाब यह है कि पहल जब लोगों को किताब दी गई, जिस वक़्त अंबिया या नबी उसमें मौजूद होते, उस किताब में कोई भी चेंजेस नहीं होती, बल्कि वो किताब अपनी असली हालत में रहती। लेकिन जब नबी इस दुनिया से चला जाता तो नबी के जाने से, यानी नबी के जाने से और नबी के जाने के बाद उस किताब में बहुत ही ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई, और उन तब्दीलियों की वजह से वो किताबें अपनी असली हालत से निकल गई, अपनी असली हालत से बिल्कुल जो है ना यानी निकल गई। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई गरीब आता तो उसके लिए अहकामात चेंज करा देते, और अगर कोई मालदार आ जाता तो उसके लिए अहकामात चेंज करा देते, और उसके लिए बाकायदा अपने अपने लोग उन्होंने रखे हुए थे। तो यही वजह है कि तौरात, ज़बूर और इंजील अगर इस ज़माने में आपको मिल भी जाए तब भी उसका पढ़ना आपके लिए जायज़ नहीं। क्यों जायज़ नहीं? क्योंकि उसमें तब्दीलियाँ की गई और उनमें लोगों ने अपनी तरफ से चीज़ें शामिल कर दिया, और वो जो अल्लाह ताला की तरफ से जिस हालत में नाजिल हुई थी वो बिल्कुल उससे क्या हुई, ख़त्म हो गई। अब जब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ और कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, कुरान की सच्चाई के बारे में अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम
ذالکل کتاب، یہ کتاب جو ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی بھی شک نہیں، یعنی اس قرآن میں کسی بھی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہ پرہیزگار کون ہے؟ تو اس کا ذکر بھی قرآن متصلاً فرما رہے ہیں، الذین یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب کی باتوں پر، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب غیب کی باتیں کیا ہے؟ تو غیب کی باتوں سے مراد وہ باتیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح قیامت کے دن آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن اس پر ایمان لاتے ہیں اس کی نشانیوں کو دیکھ کر، وملائکتی، اس کے فرشتے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فرشتے کو دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وکتبی، کتب، صرف قرآن ہم نے دیکھا، قرآن کے علاوہ تورات، زبور، انجیل ہم نے نہیں دیکھا پھر بھی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، رسول ہم نے نہیں دیکھے لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے اس پر، ورسولہ والیوم الآخر، قیامت کا دن، قیامت کا دن چونکہ آنے والا ہے۔ بعض لوگ اس سے انکاری ہے لیکن ہم مسلمان 100% یقین سے اور 100% ایمانیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے نا اس نے آنا ہے۔ تو اسی طرح قیامت کا دن، والقدر خیرہ و شرہ، اچھے اور برے تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طرح والبعث بعد الموت، بعث بعد الموت کا مطلب موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ تو مسلمانوں کے ایمان کا اہم حصہ یہ ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان لائے گا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور اسی طرح وہ نماز قائم کرے گا۔ تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں گے ہر حال میں، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ امر کے صیغے کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ تو اقیم الصلاۃ کا معنی نماز کیا کرے؟ قائم کرے، اور اسی طرح زکوٰۃ دیتے رہے۔ تو مومنین لوگ وہ کیا کریں گے؟ وہ زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور نماز قائم کریں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان سے وہ کیا کریں گے؟ وہ خرچ کریں گے۔ تو قرآن مجید کی جو سچائی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اسی طرح قرآن مجید سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ان میں تبدیلیاں کی گئی۔ قرآن چونکہ ایک لمبے عرصے تک رہنے والا ہے، قیامت کے دن تک، اور لوگ تو قیامت تک آئیں گے، تو قیامت تک کوئی نبی، کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، لہذا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو یعنی اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری وہ کس نے لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ تقریباً 1450 سال گزر گئے اور اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی اس میں تبدیلی کر سکے گا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو ہے نا اپنی اصلی حالت میں ہے، نہ ہی اس میں کوئی لفظ کی کمی آئی، نہ ہی کوئی حرف اور حرکت کی کسی چیز کی کمی اس میں نہیں آئی۔ تو اسی لیے یہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ حقانیت کی دلیل بھی ہے کہ یہ قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں ہے۔ تو بھائیو دوستو، سوال یہ ہوا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کیوں لی اور باقی کتابوں کو کیوں نہیں لی؟ تو اس کی جواب یہ ہے کہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ قرآن کا موازنہ دیگر کتابوں کے ساتھ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کے حافظ ہر وقت ہر دور میں موجود رہے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، لاکھوں، سینکڑوں، کروڑوں حافظ قرآن آپ کو مل جائیں گے، لیکن جو دوسری کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، کوئی ایک بھی بندہ، کوئی ایک بھی حافظ آپ کو اس کا نہیں ملے گا۔ تو بھائیو دوستو،
कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। सवाल बहुत ज़बरदस्त हुआ, लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर का जवाब भी बहुत ज़बरदस्त था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।